Hello everyone. So question number 90. Question number 90 says, three partners were there, Ratan, Sham and Seema. They are three partners and their ratio is 1:1:3. Seema is guaranteed minimum profit. Seema get a guarantee that she will get 20,000 minimum profit. This is the amount of guarantee for Seema. And but till now we have done a sum that net profit is given. Now in this question they have given us net loss. Net loss is given 50,000 to the firm. Net की जगह only loss I am writing, loss is given 50,000 and they are saying they are giving salary to Ratan 2,500, interest on loan 10,000. We have to pass the journal entry. So now once again I am repeating the question, listen it question, understand the question so that I will do the solution. Ratan, Sham and Seema were three partners. Their ratio is 1:1:3. Seema get a guarantee that she will get 20,000 in a year. But in this question, loss is given. Till now, whatever number of questions we have done, in every question, profit is given. So this is the one question where loss is given, and that is also 50,000. Salary to Ratan they are giving 2,500, and interest on loan they are giving 10,000. So I had explained already one topic, charge against profit and appropriation of profit. Anybody is remembering that topic? What do you mean by charge against profit and what do you mean by appropriation of profit? किसी Yes, ma'am. हाँ जी बताइए बेटा. Charge against profit means when there are profit or when there are losses, we have to pay that amount, and appropriation means when there are profit, then we have to pay that amount. Yes, good Rishika. So charge against profit, it is compulsory to pay. Appropriation of profit, if profit is there then only we will pay. If loss is there then we will not be going to pay. So tell me, interest on loan is coming under charge against profit or appropriation of profit? Charge. Yes, interest on loan is compulsory to pay whether there is profit or loss. So it is a charge against profit. And what about salary? It is appropriation of profit. Okay, it is appropriation of profit. So appropriation of profit means the things which are coming in P&L appropriation account. So that things are called as appropriation of profit. And charge against profit means the things which are going to come in profit and loss account. So salary is coming under appropriation of profit and interest on loan is coming under charge against profit. Okay, so first what we are going to make, interest on loan is given. That means first work we have to do P&L account, profit and loss account we have to make. Whenever interest on loan is given, you all are knowing we are making profit and loss account. In this question they have given us loss. अगर प्रॉफिट देते थे तो हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से लिखते थे, बट इस क्वेश्चन में इन्हें हमें लॉस दिया है. लॉस दिया है तो हमें इसको किस नाम से लिखना पड़ेगा? ग्रॉस लॉस के नाम से. तो सबसे पहले आपने ग्रॉस लॉस लिखा 50,000. इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्सपेंडिचर, so it will also come here only. Now no other information is given, that means we have to total and we have to balance. So when we are balancing 60,000, we are writing it by the name of net loss. This much is clear.
बोलिए, इतना क्लियर है बेटा? Yes. Now after that we have to make P&L appropriation account. तो अब हमें क्या बनाना पड़ेगा? P&L appropriation account बनाना पड़ेगा. So when we are making P&L appropriation account, this net loss will be coming this side. Net loss brought down 60,000. क्योंकि अगर प्रॉफिट होता है तो हम यहाँ लिखते हैं क्रेडिट में ऐसे नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बट यहाँ तो नेट लॉस है इसीलिए डेबिट में आ जाएगा नेट लॉस ब्रॉट डाउन. इसमें भी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इट्स क्लियर ना? Yes, miss. नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर डूइंग, सैलरी हमें देनी नहीं है बिकॉज इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. तो फर्म के पास ऑलरेडी लॉस है, दैट मीन्स नो नीड टू पे एनी सैलरी. और कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है तो इस लॉस को हम 60,000 को रेशो में बांट देते हैं, रतन के, शाम के और सीमा के. तो 113 में बांटा तो आपका कितना आ जाएगा? 12,000 and 36,000. आया? इतना भी समझ में आया कि नहीं आया? Yes, ma'am. ओके. सो नाउ व्हाट टू डू? गारंटी किस साइड पे करी जाती है, डेबिट में कि क्रेडिट में? अभी हमने इतने सारे सम्स करे हैं, गारंटी हम किस साइड लिखते थे, डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट साइड. दैट मीन्स क्वेश्चन में कहा है सीमा को गारंटी मिली है. तो सीमा को गारंटी मिली है 20,000 की, ठीक है ना? और ये जो 36,000 है हमने उसके नाम से लॉस डाल दिया, दैट मीन्स हमने उससे 36,000 भी ले ली हैं. हमें 20,000 तो उसको देने ही देने थे, साथ में हमने 36,000 और ले लिए हैं. तो टोटल अब हमें उसको कितना देना पड़ेगा? 56,000 देना पड़ेगा. कितने पैसे देने पड़ेंगे टोटल हमें? 56,000. एक बार फिर से सुन लो, मैं शुरुआत से समझा रही हूँ. सबसे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी हैव मेड बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन इज गिवन. वी ऑल आर नोइंग इंटरेस्ट ऑन लोन is always written under profit and loss account. So interest on loan is given 10,000 and it is coming under debit side. Gross loss is given 50,000, so total loss is 60,000. P&L account बन गया. After that we are going to make P&L appropriation account. तो P&L appropriation में पहले net loss transfer हुआ. सैलरी देंगे नहीं बिकॉज इट इज़ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जबकि हमारे पास लॉस है तो लॉस होता है तो कुछ नहीं दिया जाता, इसलिए हमने सैलरी दी नहीं. हमने इस लॉस को रेशो में बांट दिया. रेशो में बांट दिया पार्टनर्स को सीधे. दैट मीन्स हमने उनसे 12,000 और 36,000 36,000 ले लिया. प्रॉफिट हम देते हैं, लॉस हमने पार्टनर्स से ले लिए. फिर हमने देखा अरे हमने सीमा को तो गारंटी दी थी तुम्हें कम से कम 20,000 देंगे और हमने उससे 36,000 और ले लिए, तो अब हमें टोटल उसको कितना वापस करना पड़ेगा? 56,000 वापस करना पड़ेगा. आया आप समझ में कि नहीं आया इतना? Yes, miss. तो अब ये 56,000 जो हमने सीमा से ले लिए हैं, तो ये 56,000 की डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा? बचे हुए पार्टनर रतन और श्याम. अपने किस रेशो में? बचे हुए रेशो इक्वल रेशो. तो कौन कितना बेयर कर रहा है? 28,000. तो इन लोगों को और लेकर आना पड़ेगा. 28,000 ये भी लेकर आएगा, 28,000 ये भी लेकर आएगा.
तो ये हमारा टोटल यहाँ चेंज हो जाएगा, 60 की जगह ये कितना हो जाएगा, 116। टेल मी इट इज क्लियर नाउ। तो मैं जर्नल एंट्री करना सिखाऊं। सो नाउ वी हैव टू पास जर्नल एंट्री। पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, आपने लॉस बांटा, तो लॉस बांटने की जर्नल एंट्री क्या होगी बताओ। ये 36,000, 12,000 और 12,000 की एंट्री क्या होगी, क्रेडिट में दिए हैं। अगर कोई चीज़ क्रेडिट में दी होती है तो जर्नल एंट्री में वो क्या बन जाती है, डेबिट। मतलब फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, रतन कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये 60,000 आपने बांटे, 12,000, 12,000, 24,000। सबसे पहले हमने यही काम किया था तो वो हमने एंट्री कर दी। क्लियर, कौन सी एंट्री करी। अब दूसरा हमने क्या करा, 28,000 रुपये रतन लेकर आया, 28,000 रुपये शाम लेकर आया। क्यों, क्योंकि सीमा को देने थे, तो एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। तो सेकंड एंट्री हम ये करेंगे जो वो लेकर आया। तो सेकंड एंट्री हमारी हो जाएगी रतन कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीमा बिकॉज शी इज रिसीवर, सॉरी इनकम है उसकी। तो 28,000, 28,000 टोटल 56,000। ये आप ना भी बनाओ, आप बिना वर्किंग के भी कर सकते हो तो कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है तो जर्नल एंट्री ही पूछी जाती है इसकी, तो आपको जर्नल एंट्री याद रखनी है। एक जर्नल एंट्री हम और कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन देने की। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की जर्नल एंट्री हम क्या बना सकते हैं, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी एंट्री कर सकते हैं। कुछ बुक्स में ये एंट्री भी दी होती है। तो टोटल 3 जर्नल एंट्रीज वी आर गोइंग टू डू। क्लियर नाउ, what are the journal entries we have to pass and how we have to pass? Ma'am, please repeat third journal entry. Third journal entry, it is coming on the debit side of profit and loss account. So whatever thing is coming debit, that means in journal entry it will be going to credit. Due to that I had passed P&L account debit to interest on loan. आई बात समझ में? Yes, ma'am. So now question is clear to everyone? Copied? Rest all copied fast. Till that I am writing next question.
डन बेटा. Yes, ma'am. These last 3-4 questions are very important questions. कल जो 89 करवाया, 90, 91, these all are important questions. Now in this question, what is new? See, listen the question. Ramesh and Somesh were two partners for the ratio 3:2. They admitted Kamlesh, new partner आया है 1/3, मगर ये कमलेश पहले पार्टनर नहीं था, ये पहले मैनेजर के रूप में काम कर रहा था. कमलेश हमारे यहाँ मैनेजर था पहले. तो जब वो मैनेजर था तो हम उसको सैलरी दे रहे थे 54,000 पर ईयर, कमीशन दे रहे थे ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन. नेट प्रॉफिट फर्म का दिया है 4,50,000. तो इस मैनेजर को अब हमने पार्टनर बना लिया 1/3 शेयर का. तो अब इस डेफिशिएंसी में जो भी आएगा वो डेफिशिएंसी दोनों जन बेयर करेंगे. क्वेश्चन आया समझ में बेटा? कि फिर से एक बार समझाऊं? दो पार्टनर है रमेश और सोमेश 3:2 के. कमलेश उनके यहाँ पहले मैनेजर था और मैनेजर के रूप में उसको क्या क्या मिल रहा था हम वो वर्किंग करेंगे सबसे पहले. चलो, तो कमलेश को एज अ मैनेजर क्या क्या मिल रहा था हमें वो कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी. तो एज अ मैनेजर पहली चीज उसको सैलरी मिल रही है 54,000. उसको कमीशन मिल रही है, वो भी उनने कहा है ऑन नेट प्रॉफिट. ऑन नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट है 4.5 लाख का. आफ्टर चार्जिंग सैलरी मतलब उसमें से सैलरी माइनस कर दो तो जो बचा उस नेट प्रॉफिट पे हमारा रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाएगा. ऐसा क्यों किया समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि उनने कहा है ऐसा नेट प्रॉफिट जिसमें से सैलरी माइनस हो जाए, जो बचा हुआ नेट प्रॉफिट है उस पे हमें कमीशन निकालनी है. आफ्टर बोला है तो जब आफ्टर बोलते हैं तो नीचे रेट प्लस हो जाता है. तो इसीलिए हमारा फॉर्मूला बच रहा है रिमेनिंग नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100. तो 4,50,000 नेट प्रॉफिट है जिसमें से 54,000 की सैलरी माइनस करी तो बचा 3,96,000. 3,96,000 इंटू 10 अपॉन 110. तो जब आपने 10 अपॉन 110 किया तो आपका कितना आ रहा? 36,000 कमीशन आ रही है. तो ऑल टुगेदर आप उसको 90,000 एज अ मैनेजर दे चुके हो. Now tell me, this much is clear or having confusion up till here? बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने मैनेजर के रूप में उसको क्या क्या दिया है वो कैलकुलेट कर लिया. तो मैनेजर को जब वो हमारे यहाँ मैनेजर था तो हम उसको 90,000 दे चुके हैं. बट अब इसी मैनेजर को उनने क्या बना लिया? पार्टनर बना लिया है. अब वो क्या बन गया? हमारे बिजनेस का पार्टनर बन गया है. वो भी कितने शेयर का? 1/3 शेयर का. तो पार्टनर का प्रॉफिट निकालना है तो 4,50,000 इंटू 1/3
मतलब उसको कितने पैसे देने हैं, हमें 1.5 लाख रुपए एज अ पार्टनर देना है। ये हम उसको ऑलरेडी पे कर चुके हैं, बट अब हमें एक्चुअली देना कितना है, 1,50,000। तो दोनों को माइनस करो तो डेफिशिएंसी पता लगेगी। डेफिशिएंसी कितने की आ रही है, 60,000 की, जो रमेश और सोमेश बेयर करेंगे। आया इतना समझ में कि नहीं आया? मैम हाँ जी, ये माइनस क्यों किया है दोनों को? क्योंकि हमें डेफिशिएंसी निकालनी है। पर्सन एक ही है, कमलेश। जैसे मैं कह रही हूँ, अंशिका, जानवी और राजी। अंशिका और जानवी दो पार्टनर्स हैं 3:2 के। राजी पहले इनके यहाँ मैनेजर के रूप में काम कर रही थी। तो जब ये मैनेजर के रूप में काम कर रही थी तो इन लोग इसको 90,000 रुपीज़ दे रहे थे। 54,000 सैलरी दे रहे थे, 36,000 कमीशन दे रहे थे। तो टोटल 90,000 इन अ ईयर राजी को मिल रहा था। बट अब इनने कहा राजी को हम मैनेजर के बदले में पार्टनर बना दे रहे हैं। तो राजी ने तुरंत कहा ठीक है, अब मैं पार्टनर बन रही हूँ तो मुझे बताओ मुझे कहीं प्रॉफिट ज़्यादा तो नहीं मिल रहा, क्योंकि ये 1/3 शेयर के लिए आई है। तो इसने फिर ये कैलकुलेशन करवाया, प्रॉफिट का 1/3 शेयर 1,50,000। तो एज अ मैनेजर इन लोग इसको अभी 90,000 दे चुके थे, जबकि एज अ पार्टनर इसको कितने मिलने चाहिए, 1,50,000। तो राजी थोड़ी स्मार्ट थी, तो राजी ने कहा अभी तक मुझे कम पैसे मिले हैं, मुझे ज़्यादा मिलने हैं। तो उसने डेफिशिएंसी निकाल के तुरंत बता दी कि 60,000 आपने मुझे अभी तक कम दिया है, क्योंकि अब मैं पार्टनर बन गई हूँ तो मुझे 1,50,000 मिलना चाहिए, जबकि अभी तक आपने मुझे 90,000 बस दिया है। तो इसीलिए हमने दोनों को माइनस करके डेफिशिएंसी निकाली कि कितना कम दिया है। तो 60,000 राजी को कम मिले हैं, जो अब अंशिका और जानवी अपने शेयर में से उसको देंगे। तो 60,000 को 3:2 में बांटो तो 36,000 अंशिका देगी, 24,000 जानवी देगी अपने प्रॉफिट में से। आया समझ में कि नहीं आया? यस मैम। Clear? Okay, so now we are making P&L appropriation. P&L appropriation में सबसे पहले हमने लिखा नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 4,50,000। आफ्टर दैट सेपरेटली नहीं लिखेंगे क्योंकि अब वो हमारा पार्टनर ही बन चुका है। तो हमने प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल के नाम से 4,50,000 लिख दिया, जिसमें अब हमें लिखना है रमेश को कितना मिलेगा, सोमेश को कितना मिलेगा और कमलेश को कितना मिलेगा। तो पहले कमलेश को मैनेजर के रूप में 90,000 तो दे ही चुके हो, तो वो लिख दो, ठीक है। तो अब ये 4,50,000 में से 90,000 हम कमलेश को दे चुके हैं, बचे कितने, 3,60,000, जो आप रमेश और सोमेश को बांट दीजिए। तो रमेश और सोमेश को आपने बांटा, तो ये आ जाएगा 2,16,000 एंड 1,44,000। पहले बताओ दिस मच क्लियर? तो आगे प्रोसीड करूं। क्या किया, सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखा 4,50,000,
और कुछ दिया नहीं है क्योंकि वो पार्टनर बन चुका है कमलेश, इसलिए अलग से हम सैलरी कमीशन ना लिखकर उसको यहाँ पे लिख रहे हैं कि प्रॉफिट है 4,50,000, जिसमें से हम कमलेश को 90,000 दे चुके हैं। बचा हुआ प्रॉफिट हम पार्टनर्स को बांट चुके हैं, ये हमने करा। अब इसके आगे लिख देंगे कमलेश को 90 दिए हैं, जबकि मिलने कितने हैं 1,50,000, क्योंकि जब वो पार्टनर बन गया तो कितना मिलना है 1,50,000। तो शॉर्टेज हो रही है 60,000, 36,000 ये बेयर कर रहा है, 24,000 सोमेश बेयर कर रहा है, 36 इसको मिले, 84 इसको मिले, तो इसके हो गए 140, इसका बचा 120 और इसका बचा 180। आ गया समझ में? Keep studying.